ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 22, अध्याय 3 श्लोक संख्या 22। सभी श्लोक रिपीट करिए। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तववाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तववाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तववाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। Shall I read, Prabhuji? Yes, please. O son of Pritha,
There is no work prescribed for me within all the three planetary systems, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. Purport. The Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follows. Tam Ishvaranam Paramam Maheshwaram Tam Devatanam Paramam Cha Daivatam Patim Patinam Paramam Parastad Vidhama Devam Bhuvanesham Idyam Na Tasya Karyam Karanam Cha Vidyate Na Tat Samaschabhya Na Tat Samaschabhyadikascha Drishyate Parasya Shaktir Vividaiva Shruyate Swabhaviki Jnana Bala Kriyacha. The Supreme Lord is the controller of all other controllers, and he is the greatest of all the diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders and controllers and is worshipable by all. There is no one greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. There is no difference between his body and his soul. He is absolute. All his senses are transcendental. Any one of his senses can perform the action of any other sense. Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potencies are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as a natural sequence. Since everything is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the planetary systems certainly has no duty. And yet Lord Krishna is engaged in the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas, because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. Although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Prabhuji. जय श्रीला प्रभुपाद, थैंक यू. प्लीज़ हिंदी में पढ़िए. हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नित्य नहीं है. न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ. तात्पर्य: वैदिक साहित्य में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है. तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानां परमं च देवतम पतिम पतिनां परमं परस्ताद विदाम देवम भुवे न शमिड्यम न तस्य कार्यं करणं च विदते न तत्माश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते. परास्य शक्तिर्विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च. परमेश्वर समस्त नियताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान हैं. सभी उनके अधीन हैं. सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है. जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं. अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं और सबों द्वारा आराध्य हैं. उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण हैं. उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता. उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है. वे परम हैं. उनकी सारी इंद्रियाएं दिव्य हैं
उनकी कोई भी इंद्रियां अन्य किसी इंद्रिया का कार्य संपन्न कर सकती है। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है, ना ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपिणी है। फलतः उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओतप्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उसके लिए कुछ न कुछ कर्म नियत रहता है। परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है कि दीन दुनियों को आश्रय प्रदान करें। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ भी नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हमें भगवान के असली नेचर के बारे में पता चलता है कि भगवान किसी भी कर्म से बंधे हुए नहीं हैं। जैसे आज के समय में कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान भी कर्मों से बंधे हुए हैं, उन्होंने भी जन्म लिया था, उनकी भी मृत्यु हुई थी, और एक साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने भी सारे जीवन को जैसे एक साधारण मनुष्य कर्मों से बंधा रहता है और उसको बहुत सारे कर्म करने पड़ते हैं, तो भगवान कृष्ण भी वैसे ही थे। और क्योंकि उन्होंने कुछ महान कर्म किए इसलिए उनको भगवान बोलते हैं, पर वो भी हमारी तरह मनुष्य थे, और कोई भी मनुष्य जो है महान कर्म करके भगवान बन सकता है। तो यही धारणा पे आज के समय में बड़े बड़े लोग चलते हैं कि भगवान कृष्ण से बस प्रेरणा लेते हैं कि महान कार्य करने हैं, और वो खुद भगवान बनने का ट्राई करते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान तो पास्ट में थे, वो चले गए, और अब तो हम भगवान बन सकते हैं। अभी स्पेस खाली हो गई है, भगवान की जो जगह है वो खाली हो गई है। वो जो भगवान जिस जगह पर बैठते हैं वो जगह खाली हो गई है। तो आज के समय में कुछ मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग महान कार्य करेंगे और भगवान की जगह पे हम भी बैठ सकते हैं, फिर भगवान की तरह हमें भी लोग पूजेंगे और हमें भी थैंक यू बोलेंगे और हमसे प्रार्थना करेंगे, और हम भगवान की जगह ले लेंगे। तो ऐसी मूर्ख धारणा कुछ लोगों के मन में है, और सेम धारणा गुरु के प्रति भी है। वैदिक शास्त्र में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भक्ति और जैसा सम्मान हम भगवान का करते हैं, जैसी सेवा हम भगवान की करते हैं, ठीक वैसी सेवा हमें गुरु की करनी चाहिए। गुरु की पोजीशन भगवान के लेवल पे होती है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु साक्षात परब्रह्म है, जैसे भगवान कृष्ण हैं वैसे ही गुरु साक्षात परब्रह्म है। इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान की फ़ोटो के साथ साथ प्रभुपाद जी की फ़ोटो भी है, क्योंकि प्रभुपाद जी साक्षात कृष्ण भगवान के प्रतिनिधि है। तो आज के समय में ऐसे बहुत सारे मूर्ख लोग हैं जो कृष्ण तो नहीं बनने का प्रयास कर रहे हैं, बट प्रभुपाद जी बनने का ट्राई कर रहे हैं। तो वो कृष्ण के बाद डायरेक्ट खुद की फ़ोटो डालते हैं और सोचते हैं कि अब हम हैं, कृष्ण भगवान का जो लिंक है वो डायरेक्ट हमसे है, हम डायरेक्ट गुरु हैं, प्रभुपाद जी को हटा देते हैं। तो ऐसी भी मूर्खता बहुत लोग करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कृष्ण भगवान की पोजीशन हम खुद ले सकते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि चलो कृष्ण भगवान की पोजीशन नहीं ले सकते, बट कम से कम प्रभुपाद जी की पोजीशन ले सकते हैं। तो ये दोनों ही मूर्ख है, क्योंकि
ना तो हम कृष्ण की पोजीशन ले सकते हैं, ना तो हम प्रभुपाद की पोजीशन ले सकते हैं। हम लोग सिर्फ उनको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है। तो ये पोजीशन हमको जाननी है, मेरी असलियत क्या है और मुझे क्या करना है। ना तो मुझे कृष्ण बनना है, ना तो मुझे प्रभुपाद बनना है। मुझे प्रभुपाद जी का अनुयायी बनना है, अनुयायी बनने का प्रयास करना है, प्रभुपाद जी के पीछे चलने का प्रयास करना है। ये हमारी पोजीशन है। प्रभुपाद जी कृष्णा के पीछे चल रहे हैं, हमें प्रभुपाद जी के पीछे चलना है। हमें ना तो गुरु बनना है, ना तो हमें भगवान बनना है। क्योंकि भगवान की पोजीशन ये है कि उनको तीनों लोकों में कोई काम नहीं है। भगवान तीनों लोकों के मालिक है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तो तीनों लोकों में भगवान के लिए कोई कर्म करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो मालिक है। पर फिर भी मालिक होते हुए भी वो कर्म करके दिखाते हैं कि कर्म कैसे करना चाहिए। तो अगर कोई मालिक है तो उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, पर जिसको कर्म करने की आवश्यकता है उसको मार्गदर्शन की भी आवश्यकता है कि कर्म कैसे करना है और मालिक की सेवा कैसे करनी है। तो मालिक फिर खुद कर्म करके दिखाता है कि ऐसे करना है, ऐसे सेवा करनी है, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से करो, इस तरह से मत करो। तो मालिक खुद नीचे आके सिखाता है कि ऐसे कर्म करते हैं और ऐसे भक्ति करते हैं। तो वो जो स्वरूप है भगवान का जिसमें उन्होंने भक्ति करके दिखाई, वो स्वरूप है श्री चैतन्य महाप्रभु। वो भक्त के रूप में आए, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु आए। भक्त का जो स्वरूप है वो बलराम जी है, नित्यानंद प्रभु। भक्त अवतार जो है वो अद्वैताचार्य जी हैं। भक्त आख्यम, भक्त की तरह जो विख्यात है वो गदाधर पंडित है। और नमामि भक्त शक्तिकम, तो भक्तों को जो शक्ति देने वाले हैं वो श्रीवास आचार्य। तो ये पंच तत्व है, पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो भगवान खुद भक्त के रूप में आते हैं और अपने स्वरूप को साथ ले आते हैं। बलराम जी को अपने भक्त अवतार को ले आते हैं साथ में, जो सारे ब्रह्मांडों को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं। वो भक्त अवतार के रूप में है। भक्त आख्यम मतलब जिन्होंने अपनी भक्ति की वजह से जो विख्यात है, गदाधर पंडित, वो राधा रानी के अवतार हैं। और भक्त शक्ति मतलब नारद मुनि हैं, जो गुरु तत्व जो हमें शक्ति देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं भक्ति करने के लिए। नमामि भक्त शक्तिकम, तो वो हम सभी जीवों को शक्ति देते हैं कि हम गुरु को फॉलो करें। तो पंच तत्व ने श्रीला प्रभुपाद जी को भेजा है इस समय में हमें समर्पण करवाने के लिए। तो ना तो हम प्रभुपाद जी की जगह ले सकते हैं, ना तो हम भगवान की जगह ले सकते हैं। हमारी जगह है हमें उनको फॉलो करना है। भगवान खुद कर्म करके दिखा रहे हैं, वर्त एवच कर्मणि। तो भगवान खुद कर्म करके दिखाते हैं कि ऐसे कर्म करना है, इस तरह से करना है, इस उद्देश्य से करना है कि हम भगवान की सेवा करें। हमारा जो स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेद भेद प्रकाश। तो हम भगवान की शक्ति हैं और जो नारद मुनि हैं नमामि भक्त शक्तिकम, वो हमको शक्ति देते हैं भक्ति करने के लिए। तो हमारी जो परंपरा है वो नारद मुनि से ही आती है, व्यासदेव, नारद मुनि और फिर चैतन्य महाप्रभु, फिर शिला प्रभुपाद। तो ये परंपरा वहीं से आती है। तो हमारा जो पोजीशन है, हमें बस उनसे सीखना है कि कर्म कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। ये सारे प्रश्नों का आंसर प्रभुपाद जी ने अपने आदेशों में दिया हुआ है। क्या करना है, हमें हरे कृष्णा का चैंटिंग करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान की सेवा करनी है, श्रवण करना है भगवान के बारे में।
तो ये क्या क्या करना है, इसका आंसर है कब करना है, हर समय करना है, हर काल में करना है, सुबह शाम दिन हर समय में हमको ये करना है। कैसे करना है ये प्रभुपाद जी ने खुद करके दिखाया है, जप करके दिखाया है, स्मरण करके दिखाया है, सेवा करके दिखाई है भगवान की कैसे सेवा करते हैं, प्रचार करके दिखाया है कि कैसे प्रचार करते हैं, भोग कैसे बनाते हैं भगवान के लिए, आरती कैसे करते हैं, सब कुछ प्रभुपाद जी ने करके दिखाया है। तो कैसे करना है उसका भी आंसर है प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। कब करना है इसका भी आंसर है कि हमेशा करना है। क्या करना है ये भी आंसर दे चुके हैं प्रभुपाद जी। और इस तरह से देखा जाए तो हर क्वेश्चन का आंसर है प्रभुपाद जी के बुक्स में और लेक्चर में, हमें बस उनको फॉलो करना है। तो गुरु जो है वो परमेश्वर की तरह ही हमारा नियंत्रण करते हैं। हम जब उनको समर्पण करते हैं गुरु को, तो वो हमारे मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रित करते हैं। तो गुरु जो है वो साक्षात परब्रह्म की तरह नियंत्रक है, कंट्रोलर है। हमें उनके कंट्रोल में रहना है, हमें श्रीला प्रभुपाद जी के कंट्रोल में रहना है, ये हमारी पोजीशन है। अगर हम कंट्रोलर बनने का ट्राई करते हैं, अगर हम गुरु बनने का ट्राई करते हैं, तो वो माया है। फिर माया हमें नीचे गिरा देती है जब हम गुरु बनने का ट्राई करते हैं। पर अगर हम अपनी पोजीशन को पहचान लेते हैं, हम अपनी जगह को पहचान लेते हैं कि मेरी जगह तो है प्रभुपाद जी के चरणों में रहना, उनकी बातें सुनना, उसको फॉलो करना, उनके आदेशों को फॉलो करना, तो फिर हम अपनी असली पोजीशन में आ जाते हैं। फिर माया हमको टच नहीं कर सकती। तो आज तक जितने भी लोगों ने गुरु बनने का ट्राई किया है, सबका पतन हो गया। प्रभुपाद जी को हटा के जो खुद गुरु बनना चाहते हैं, या जो प्रभुपाद जी के बाद खुद गुरु बनना चाहते हैं, उन सबको माया ने नीचे गिरा दिया है। और अब तक वही बच पाया है जो प्रभुपाद जी के सामने झुक जाता है और उनको गुरु मान लेता है और उनके माध्यम से कृष्ण की सेवा करता है। तो उसको माया छू नहीं पाती कभी भी, और वो भक्ति करता रहता है हर परिस्थिति में। तो ये हमको समझना है, नियंता का मतलब समझना है। परमेश्वर और गुरु ये नियंताओं के नियंता है, और ये इतने बड़े नियंता है कि सूर्य, चंद्र और बड़े बड़े देवताओं के भी वो नियंता है। सारे देवता उनके नियंत्रण के अंडर, उनके आदेश के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो जिस सूर्य को हम मतलब सूर्य हम देखते हैं बट उसके नज़दीक भी हम जा नहीं सकते, वो इतना शक्तिशाली है कि हम सूर्य के नज़दीक भी नहीं जा सकते। पर उस महान सूर्य को भी भगवान नियंत्रित करते हैं, और गुरु को उन भगवान ने नीचे भेजा है। तो भगवान और गुरु दोनों नियंत्रक है, वो परम नियंता है, नियंताओं के भी नियंता है। तो ये स्टेटमेंट जो श्वेताश्वतर उपनिषद का यहाँ दिया हुआ है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि भगवान का शारीरिक स्वरूप जो है वो हमारी तरह नहीं होता, भौतिक तत्वों से नहीं बना होता। भगवान का जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक है, और भगवान इतने शक्तिशाली है कि सूर्य चंद्र को भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये भगवान ने महाभारत में करके दिखाया है, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। भगवान ने महाभारत में दिन के समय सूर्य को ढक दिया था और दिन के समय रात कर दी थी महाभारत के युद्ध में। तो ये एक फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि भगवान सूर्य चंद्र को भी नियंत्रित कर सकते हैं। वो दिन में भी रात कर सकते हैं और रात में भी दिन कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए असंभव है। हम दिन में रात नहीं बना सकते, रात को दिन नहीं बना सकते। पर भगवान ने युद्ध के अंदर सामने वाले पक्ष को भ्रमित करने के लिए दिन में भी रात कर दी थी, और सामने वाले पक्ष को ऐसा लगा कि अभी रात हो गई है, और इस तरह से उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया। और फिर भगवान ने अपना जो शक्ति से फिर से सूर्य को प्रकट कर दिया, तो और फिर उनका वध कर दिया दुश्मन का। तो इस तरह से भगवान कुछ भी कर सकते हैं। मतलब भगवान वो सुप्रीम कंट्रोलर है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वो दिन के समय रात कर सकते हैं, रात के समय दिन कर सकते हैं, राजा को रंक बना सकते हैं, रंक को राजा बना सकते हैं। अब महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन राजा था और पांडव एकदम ज़मीन पे आ गए थे।
उनके पास ना राज्य था, ना धन था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था पांडवों के पास युद्ध शुरू होने से पहले। और केवल 18 दिन में उन्होंने दुर्योधन को एकदम नीचे गिरा दिया और पांडवों को ऊपर बिठा दिया, केवल 18 दिन में। और उन 18 दिन में उन्होंने एक दिन में सूरज को भी पूरा ढक दिया, तो दिन में रात हो गई थी। तो भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो दुश्मन को हरा भी सकते हैं, दिन में रात भी कर सकते हैं। 18 दिन में वो पूरा राज्य वापस भी दिला सकते हैं पांडवों को। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बार समझाया है कि हम लोग भगवान में विश्वास नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम लोग अगर भगवान का विश्वास करेंगे, गीता का पालन करेंगे संविधान के रूप में, तो पूरी धरती हमारी हो जाएगी। हम एक छोटे से कश्मीर या छोटे से पाकिस्तान के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अपने प्रवचन में कि अगर हम गीता को संविधान बनाएंगे और गीता के अनुसार चलेंगे तो पूरी की पूरी धरती हमारी हो जाएगी। पूरी धरती का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तो इसके लिए हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभुपाद जी और श्री कृष्ण परम नियंता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पर हमारे अंदर कमी इस बात की है कि हम उनको नियंता नहीं समझते, हम खुद को नियंता समझते। इसीलिए हम हार जाते हैं, इसीलिए दूसरे लोग हम पे राज करते हैं और हमें परेशान करते हैं, हम पे आक्रमण करते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि जो असली नियंता है भगवान और गुरु, ये असली नियंता है। वो देवताओं के भी नियंता है, वो सूरज और चांद के भी नियंता है। और हमें उनमें विश्वास नहीं है, ना भगवान में ना गुरु में। इसीलिए हमें कोई भी आके मार जाता है और हम पे राज करके जाता है। हम पे बाहर से लोग आके राज करके चले जाते हैं और अभी भी हम गुलाम बने हुए हैं, क्योंकि हम असली भगवान और असली गुरु को नहीं मानते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि असली नियंता, असली कंट्रोलर कौन है। और वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमें माया से बचा भी सकते हैं, वो पूरे दुनिया का भी राज हमको दे सकते हैं। और भगवान के नियमों के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता। ये फैक्ट है, ये महाभारत में भगवान ने करके दिखाया है। पर आज के समय में इतनी बुरी परिस्थिति है कि लोग महाभारत को भी काल्पनिक मानते हैं। जो सच्चाई है, जो परम सत्य है, उसी को काल्पनिक मानते हैं। इसीलिए हमारी हालत इतनी ख़राब है। तो सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए, तभी हमारी हालत अच्छी होगी। हमने सच्चाई को काल्पनिक मान लिया है, इसीलिए हमारी हालत गुलामों जैसी है। हमें भगवत गीता को, श्री कृष्णा को और प्रभुपाद जी को वास्तविक मानना पड़ेगा, सच्चाई मानना पड़ेगा और उनको ही नियंत्रक मानना पड़ेगा। उनके नियंत्रण के अंदर अगर हम कार्य करेंगे तो सब कुछ हमें वापस मिल जाएगा। हमारी जो आज़ादी है खोई हुई, वो हमें मिल जाएगी। तो असली आज़ादी है भगवान के नियंत्रण में रहना। भगवान के नियंत्रण में, गुरु के नियंत्रण में जब हम रहते हैं तो हम माया से मुक्त रहते हैं और हम हमेशा खुश रहते हैं। हम पे कोई राज नहीं कर सकता। हमारा असली राजा भगवान है और श्रीला प्रभुपाद है। अगर हमने उनके नियंत्रण को हमने मान लिया अगर, तो फिर बाकी कोई हम पे नियंत्रण नहीं कर पाएगा। वही असली आज़ादी है। तो ये बात हमको समझनी है कि असली आज़ादी क्या है। असली आज़ादी है भगवान कृष्ण और श्रीला प्रभुपाद के नियंत्रण में रहना, उनके आदेशों का पालन करना। और उनके आदेश इतने मुश्किल भी नहीं हैं, बड़े आसानी से और बड़े आनंद से हम लोग उसको कर सकते हैं। सिर्फ 16 माला जपनी है, प्रसाद खाना है, कीर्तन करना है, डांस करना है, एंजॉय करना है। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसमें तो नियंत्रण जैसा लगता भी नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हम एंजॉय कर रहे हैं। तो यही असली चीज़ है, यही सत्य है कि भगवान का नियंत्रण इतना अच्छा है कि वो नियंत्रण जैसा लगता ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम आनंद कर रहे हैं और उल्टा भगवान हमारे नियंत्रण में आ जाने को तैयार हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों के नियंत्रण में आ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान के ही अंडर रहना सबसे अच्छा है, उसी में सबसे ज़्यादा आनंद आता है और वही असली आज़ादी है। इस बात को हमें समझना चाहिए। क्योंकि हम भगवान को नहीं मानते हैं, हम भगवान को नियंत्रक नहीं मानते हैं, इसीलिए हम गुलाम की तरह रहते हैं और हम दुखी रहते हैं हमेशा।
अगर हम भगवान को ही नियंत्रक मान लेंगे, गुरु को ही नियंत्रक मान लेंगे, तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, हमको असली आज़ादी मिलेगी, और उल्टा भगवान हमारे साथ रहने को तैयार हो जाएंगे, हमारे नियंत्रण में भगवान रहने को तैयार हो जाएंगे। जैसे भगवान यशोदा माई के नियंत्रण में रहते हैं। यशोदा माई उन्हें बोलती है कि यहाँ बैठो, तो भगवान बैठ जाते हैं। यशोदा माई बोलती है अब वो खाना खाओ, तो वो खाना खाते हैं। और वो डांटती है तो भगवान डर जाते हैं। तो भगवान अपने भक्त के नियंत्रण में रहते हैं, हालांकि वो खुद नियंत्रक है, पर वो इतने अच्छे हैं कि वो अपने भक्तों को नियंत्रण दे देते हैं कि ठीक है, अब तुम मुझ पर नियंत्रण करो, मैं तुम्हारे आदेश के अनुसार कार्य करूँगा। जैसे गीता में भी अर्जुन भगवान को आदेश दे रहा है कि अब रथ को राइट में ले जाओ, रथ को लेफ्ट में ले जाओ, रथ को सीधा ले जाओ। गीता में शुरुआत में भगवान को अर्जुन ने कहा रथम स्थापय में अच्युत, दोनों पक्षों के बीच में मेरे रथ को ले जाइए। तो अर्जुन भगवान को आदेश दे रहे हैं और भगवान उसका रथ चला रहे हैं। तो भगवान इतने महान हैं कि अर्जुन ने बस उनको गुरु मान लिया, उनको नियंत्रक मान लिया, तो भगवान अब उसके आदेश का पालन कर रहे हैं। तो भगवान इतने महान हैं। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, वही सबसे बेस्ट है। उसी से असली आनंद मिलता है, उसी से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती है, उसी से हमें आज़ादी मिलती है, और हमें विजय भी मिलती है, सारा श्री ऐश्वर्य भी मिलता है, और आज़ादी भी मिलती है, आनंद भी मिलता है, और भगवान जैसा साथी मिलता है। तो जो कुछ हमारे मन में पाने की इच्छा है वो सब कुछ मिलता है जब हम भगवान को नियंत्रक मान लेते हैं। तो ये भक्ति जो है, भक्ति योग सबसे उत्तम है। यही गीता का संदेश है कि सब कुछ भगवान के लिए करो, भगवान को नियंत्रक मान के करो, भगवान को ईश्वर मान लो, अपने जीवन का स्वामी भगवान को मान लो, और श्रील प्रभुपाद जी को अपना स्वामी मान लो, तो सब कुछ हमारे लिए अनुकूल होता है, अच्छा होता है, और हमारी सारी इच्छाएं भी पूरी होती रहती है, और हमारा जीवन का लक्ष्य भी पूरा हो जाता है। तो ये सबसे उत्तम तरीका है जीवन जीने का। तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी ये कहते हैं कि आज के दिन जो है 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए, उसका क्या रीजन है? आज के दिन मतलब समझा नहीं मैं। नहीं, गीता का 7वां अध्याय कहते हैं लोग ना कि आज के दिन मतलब पढ़ना चाहिए, जैसे श्राद्ध है, तो मतलब इसको अच्छा। कहते हैं कि लास्ट में पढ़ना चाहिए 7वां अध्याय गीता का ना, ऐसा। नहीं, वैसे तो पूरी गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरी गीता का जो संदेश है पूरी गीता का हर श्लोक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पूरी गीता नहीं पढ़ पाते, तो वो किसी एक अध्याय का नाम ले लेते हैं। वैसे तो पूरी गीता ही रोज़ पढ़नी चाहिए। जैसे एक कथा आती है महाप्रभु की, कि महाप्रभु के समय में एक ब्राह्मण थे साउथ इंडिया में, उनके गुरु ने उनसे कहा था कि तुम्हें रोज़ गीता के अध्याय पढ़ने हैं। तो वो अनपढ़ थे, पर उनको संस्कृत पढ़ना नहीं आता था, फिर भी वो कोशिश करते थे पूरी गीता पढ़ने की। तो एक्चुअली तो पूरी गीता ही रोज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि पूरी गीता पढ़ने में करीब 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो हम लोग तो पढ़ नहीं पाते हैं क्योंकि समझना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम ब्रेक डाउन करके एक एक श्लोक पढ़ रहे हैं। तो गीता तो रोज़ ही पढ़नी चाहिए, आज के दिन या कल का दिन ऐसा कुछ नहीं है। गीता 365 दिन रोज़ पढ़नी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सकते है उतना पढ़ना चाहिए, रोज़ 16 माला करनी चाहिए। तो ये जो नियम लोग बनाते हैं वो उनके लिए बनाते हैं जो नियमित रूप से भक्ति नहीं करना चाहते। बस वो एक मान लो कि एक दिन में कर ली भक्ति, फिर छोड़ दिया, फिर संसार में माया में लग गए वापस, फिर वापस से रिफ़्रेश होने के लिए या शक्ति पाने के लिए वापस से एक आध दिन भक्ति कर ली, पर वो छोटी सी जो भक्ति वो करते हैं वो फिर से ज़ीरो हो जाती है, क्योंकि जैसे ही भक्ति करते हैं थोड़ी शक्ति मिलती है, वो फिर से माया में चले जाते हैं, सारी शक्ति उनकी ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए वो वैष्णव वाला कल्चर नहीं है जो आप बता रहे हैं कि एक अध्याय पढ़ना चाहिए आज के दिन, श्राद्ध में एक अध्याय पढ़ना चाहिए। ये वैष्णव वाला कल्चर नहीं है। वैष्णव का कल्चर है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्येच। वैष्णव का कल्चर है हर समय, हर रोज़ 365 दिन, हर रोज़ कृष्ण का स्मरण करना।
ऐसा एक भी सेकंड लाइफ में गुजरना ही नहीं चाहिए जहाँ कृष्णा का स्मरण नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या श्राद्ध है, क्या संडे है, क्या मंडे है, क्या उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसके लिए हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक सेकंड कृष्णा के लिए है, और बस कृष्णा का ही स्मरण करना उसकी लाइफ का गोल है। तो ये असली वैष्णविज्म है कि कृष्णा को एक सेकंड के लिए भूलना ही नहीं है, कभी भी। जी तो हम अगर ये फॉलो कर रहे हैं तो हमें बाकी कुछ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो कृष्णा का स्मरण हमेशा करते रहते हैं। बिल्कुल। जी, और कोई क्वेश्चन किसी को? ठीक है, तो हम यहीं पे रुकेंगे। आज का श्लोक यहाँ पूरा होता है। अगला श्लोक हम कल पढ़ेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Prabhuji.